Assalamu alaikum dear students of junior 3. How are you all? I hope you all will be in proper frame of mind. Dear students, after completing second unit the wooden ball, today we are going to start its subtopic playtime. The playtime is a poem and it is written by Claire Horsburgh. You can see the name of the poetess Claire Horsburgh. Okay, before going to the reading with its translation, I am going to give you the intro of this poem. Playtime is a poem which discusses how the kids play and how they enjoy while playing. And it also shows that we as a parent should participate in kids playing and give them quality time in their playing and be a part of their fun time. So in this poem you can see there are two sisters. Okay, there are two sisters who are playing in their garden and this is their father. And when we will read the poem you will see that the two sisters act as a spy, and their father act as a beast. And the apple trees are the gold which the two spies wants to take. So in this poem when we read you will see that the two sisters as a spies, they went to the garden and they try to take these apples in the form of the gold, and their father as a guard, and which is regarded as a beast because he is acting as a beast. And he is snoozing and sleeping on the chair when one sister tries to take the apple. He wakes up and they have the fight with each other, but the girls succeed and they take the apples. So this is an imaginative poem. The sisters are imagining that they are the spies and they try to take the treasure of gold, and their father acts like a guard who is sitting there to take care of the gold in the form of the apples. And but the girl succeeded in taking the apples and taking the gold. So let's read this poem with translation. Keep the finger on the right word which I am going to read and pay full attention. Play time, खेल का वक्त. By the garden shed, जो बाग का जो छप्पर होता है, आप देखते हैं we have एरिया, कवर्ड एरिया, शेड या हट जिसे कहते हैं, हट आप बना लेते हैं गार्डन की, जहाँ बैठ के आप चाय पीते हैं या बैठते हैं एंजॉय करते हैं. बाय द गार्डन शेड, बाग के छप्पर के पास. माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैं. वर प्लेइंग अ गेम, एक गेम खेल रहे थे. एंड आई वॉज अ स्पाई, और मैं एक जासूस थी. आई हैड अ मिशन, मेरे पास एक मिशन था, मंसूबा था, हम कोई किसी मिशन पे निकले हुए थे. वाइल शी गार्डेड बेस, जबकि वो हिफाजत कर रही थी बेस की, कि वो इधर उधर देख रही थी कि कोई आ रहा तो नहीं है तो मुझे इन्फॉर्म करेगी. अब मेरा क्या मिशन था? आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, मुझे एक सीक्रेट मीन्स खुफिया, मुझे एक खुफिया जगह से सोने को निकालना था. द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री. अब वो बता रहे हैं कि वो गोल्ड क्या था? 2 एप्पल्स. शी वॉन्ट्स टू टेक 2 एप्पल्स, वन फॉर हर सिस्टर एंड वन फॉर हर सेल्फ, अपने लिए और अपनी बहन के लिए उसको 2 एप्पल्स चाहिए थे. तो वो इमेजिन कर रहे हैं, शी इज इमेजिनिंग कि उसको गोल्ड चाहिए एक खुफिया जगह से. बट इन आर गेम, लेकिन हमारे खेल में, दे वर रियल गोल्ड टू मी, वो जो दे
वो जो 2 एप्पल हैं वो हमारे लिए रियल गोल्ड, असल सोना है, टू मी, मेरे लिए। अ जाइंट बीस्ट वॉज asleep, एक बहुत बड़ा, जाइंट मीन्स देव कामद, बीस्ट दरिंदा या हैवान, वॉज asleep सोया हुआ था, इन द वे रास्ते में, इफ आई वोक हिम अप, अगर मैं उसे उठाती, I'd be sure to pay, तो मुझे यकीन था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी होती। I'd be sure to pay, pay means कीमत चुकाना, तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती कि वो मुझे पनिश कर लेता, मुझे पकड़ लेता अगर मैं उसको उठा देती। The beast was ferocious, जो हैवान था या दरिंदा था वो बड़े गुस्से वाला था। Quite mad, बिल्कुल पागल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, मैड मीन पागल, एंड बैड, और एक बुरा इंसान था। ही इज देयर फादर, बट नाउ इन द पोएम ही इज एक्टेड लाइक अ बीस्ट, वो एक किरदार, जैसे आप ड्रामा करते हो तो आप एक्टिंग करते हो, तो इनका बाबा जो है उनकी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक बीस्ट बना हुआ है, दरिंदा बना हुआ है। बट एक्चुअली द बीस्ट वॉज माई स्नोजिंग डैड, लेकिन रियली मीन्स असल में जो ये दरिंदा है वॉज माई स्नोजिंग डैड, स्नोजिंग मीन्स खराटे लेता हुआ, डैड बाबा है। आई क्रेप्ट पास द बुशेज, आई क्रेप्ट मैं रेंगी, रेंगना, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, आई क्रेप्ट पास द बुशेज मैं झाड़ियों के पास से रेंग कर गई, ट्विस्टेड लाइक फायर, जो कि अब कौन, ये जो झाड़ियाँ थीं ये जैसे तारे आपस में बल खाए हुए होते हैं ना, जब फोल्ड हुई तारे हों, तो उस तरह की ये झाड़ियाँ थीं। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, और जो वहाँ पर एक छोटी सी लो वॉल, बहुत बड़ी दीवार नहीं थी, छोटी सी दीवार थी, ग्लोइंग वो चमक रही थी, वार्म उसमें इतनी ग्लो कर रही थी, वार्म मीन्स गर्म थी, तप रही थी, ग्लोइंग वार्म मीन्स तप रही थी। गर्मी में आप देखते हैं ना कि जब दीवारें धूप की वजह से गर्म हो जाती हैं, तप रही होती है, लाइक फायर, आग की तरह। I did not notice the beast's beady eyes. I did not notice, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, the beast's beady eyes, जो दरिंदे की गोल गोल बटन की तरह वाली आंखों की तरफ, मीन्स कि अब वो जाग गया था। ओपनिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। माई डैड कुड बी स्लाई, मेरा बाबा मीन्स होशियार या चालाक, जब आप एक चालाकी से किसी को एक आंख खोल के तो उसको देख रहे होते हैं चोरी चोरी, कि उसको पता ना चले कि दैट यू आर ऑब्जर्विंग हिम और हर, कि आप उसे आप गौर से देख रहे हैं। आई रीच्ड आउट माई हैंड, मैंने अपने हाथों को पहुंचे, मेरे आई रीच्ड आउट माई हैंड, मैंने अपने हाथों को आगे किया, एंड कैप्चर्ड द गोल्ड, और पकड़ लिया गोल्ड को, मीन्स कि वो जो एप्पल थे वो मैंने तोड़ लिए। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक, मैं तकरीबन पीछे ही था, ठीक है, ऑलमोस्ट मीन्स तकरीबन। व्हेन अ हैंड टुक होल्ड, जब एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट, उस हाथ ने मेरी शर्ट को जल्दी से पकड़ लिया, ग्रैब के पकड़ लेना, एंड मेड मी येल, और मुझे चीखने पर मजबूर किया, मीन्स कि मुझे इतने ज़ोर से शर्ट से पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। माई सिस्टर लुक्ड अप, मेरी बहन ने ऊपर देखा, एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी चिल्लाई, एज वेल भी, एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी चिल्लाई। आह द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स हैवान, दरिंदा। द बीस्ट हैज गॉट यू नाउ, दरिंदे ने तुम्हें अब पकड़ लिया है। आई हैड टू एस्केप, मुझे अब इससे आज़ाद होना है, ठीक है, मुझे आज़ाद होना है। आई डिडंट नो हाउ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कैसे आज़ाद हूँ। माई सिस्टर फ्लू इन, मेरी सिस्टर उड़ी, मीन्स के बहुत तेज़ी से झपटी, एंड स्टार्टेड अ फाइट, और लड़ाई शुरू कर दी। वी बोथ फॉट द बीस्ट विद ऑल आवर माइट, वी बोथ, हम दोनों, फॉट लड़े, द बीस्ट दरिंदे के साथ, विद ऑल आवर माइट, अपनी सारी, माइट मीन्स ताकत के साथ,
soon जल्द ही he was weak वो कमज़ोर हो गया and he fell to his knees और वो अपने knees means घुटनों के बल गिर गया। अब वो बता रहे हैं जो ये दिस वाज द इमेजिनेटिव पोएम थी ना, तो आर डैड कुड एक्ट वेल हमारे जो बाबा हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, वेल मीन्स बहुत अच्छे, एक्ट मीन्स एक्ट कर सकते हैं, अदाकारी कर सकते हैं, एंड ही लाइक्ड और वो पसंद करते हैं, टू प्लीज खुश होना, और उन्हें खुश होना भी आता है कि कैसे खुश हुआ जाता है और उस खुशी पर वो खुश होते हैं। वी एस्केप टू आर सेफ प्लेस बाय द शेड हम फरार हो गए, टू आर सेफ प्लेस एक महफूज जगह पर, बाय द शेड छत वाली जगह पर, छप्पर वाली जगह पर हम उसकी सेफ जगह पर चले गए। द बीस्ट वॉज डिफीटेड दरिंदे को, डिफीटेड मीन्स शिकस्त हो गई, एंड हंग हिज हेड और अपना सर लटका दिया। ही रिटर्न्ड वो वापिस आया, टू सेटल इन हिज डार्क लेयर ही रिटर्न्ड वो वापिस आया, टू सेटल दोबारा बैठने के लिए, इन हिज डार्क लेयर अपनी अंधेरे वाली चेयर पर जिस पर वो आराम कर रहा था। एक्चुअली असल में जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर जो कि एक पुराने बाग की चेयर थी, जो लेयर था वो चेयर है। वी स्पाइज हैड वन हम जो स्पाइस थे, जासूस थे, वो जीत चुके थे। द मिशन कंप्लीट और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया था। स्पाई कहते हैं जासूस को, स्पाइज इज द प्लूरल ऑफ स्पाई। इन प्रीवियस पेज यू हैव द वर्ड स्पाई, स्पाई इज सिंगुलर, जासूस, एंड स्पाइज इज द प्लूरल। अब दोनों बहनों की बात हो रही है ना, स्पाइज मीन्स दोनों जासूस। हैड वॉन जीत चुके थे, द मिशन कंप्लीट और मिशन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। वी मंच्ड ऑन आर एप्पल्स हम अपने, मंच मीन्स भूखों की तरह झपटना, मंच मीन्स चबाना, आर एप्पल्स अपने सेबों को हमने चुबाया, मीन्स कि हमने खाया। ओह व्हाट अ ट्रीट, ओह क्या मज़े का इनाम था, कि मीन्स कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और हमने अपनी ट्रीट हासिल कर ली। So dear students, I hope you will have the better understanding of the whole poem, reading with translation and the meanings of the difficult words. And if you have any difficulty in the pronunciation of any word or the meanings of any difficult word, you can send me message in my inbox. Thank you.